Coming up with the question number 9 of exercise 1.1. Here we have reduce the given rational expression to the lowest term. Lowest term means it cannot be simplified further. Alright, एक चीज़ that needs to be explanation. One thing that is what we have learned the concept of terms. ठीक है, in algebra we have learned that terms are separated by plus and minus. मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन इज कंसिडर्ड टू बी वन टर्म ओनली. यानी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ फॉर दिस एक्सप्रेशन तो 8 इज नॉट अ सेपरेट टर्म, एक्स स्क्वायर इज नॉट अ सेपरेट टर्म, वाई स्क्वायर इज नॉट अ सेपरेट टर्म. एक्चुअली दिस वन इज अ होल टर्म. अगर इसमें कोई प्लस या माइनस होता तो फिर ये हमारे पास एक डिफरेंट टर्म होती, राइट. तो जो हमारे पास सिंपल एक्सप्रेशंस हैं उन्हें हम सिंपल तरीके से ही सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन्हें उस तरीके से फैक्टराइज करके लिखेंगे जो जितना फैक्टराइज किया जा सके, राइट. तो हमारे पास देखिए यहाँ पर कितना है, 8 एक्स स्क्वायर ऊपर है और एक्स रेज टू द पावर 4 डिनोमिनेटर में है. अब स्क्वायर को 4 नहीं बनाया जा सकता लेकिन 4 को स्क्वायर बनाया जा सकता है, राइट. इट कैन बी रिटन एज 8x स्क्वायर एंड x पावर 4 कैन बी स्प्लिटेड एज x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, राइट. इसी तरह से आप देखें यहाँ पर y का स्क्वायर है, यहाँ पर एक y है. स्क्वायर 1 में स्प्लिट नहीं हो सकता, सॉरी 1 2 नहीं बन सकते, लेकिन स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स. ओके, तो इस तरीके से आपने कंपेयर करके एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेना है. उसके बाद इसकी कटिंग करें तो आपके पास आएगा 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, इट्स 2/3. एक्स स्क्वायर विल बी कैंसल्ड आउट, 1 y विल बी कैंसल्ड आउट. वी आर ओनली लेफ्ट एज 2y डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर. ओके, further expression cannot be simplified, right. In the question number 10 again we are having the same thing, that is 25. Let me check. Yes, it's 25 a cube b square divided by 14 a square b raised to the power 4. alright, अब यहाँ पर भी हम क्वेश्चन को कंपेयर करके करेंगे. 25 over 14 दे बोथ आर कांस्टेंट. लेट मी राइट देम एज इट इज. ओके, अब देखें यहाँ पर a क्यूब है, यहाँ पर a स्क्वायर है. स्क्वायर कैन नॉट बी स्प्लिटेड बट a क्यूब कैन बी रिटन एज a स्क्वायर इंटू a. ओके, अब इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास b स्क्वायर है और यहाँ पर b रेज टू द पावर 4 है, राइट. तो अब यहाँ पर देखें 4 कैन बी स्प्लिटेड इन द टर्म्स ऑफ b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर and it is b square in the numerator. Okay, now cancel them out. इन दोनों को कैंसिल करेंगे. a square will be cancelled out, b square will be cancelled out. सिंपल आपके पास एक्सप्रेशन रह जाएगा 25a डिवाइडेड बाय, यहाँ पर है हमारे पास 14, a square is cancelled, b square is cancelled and the situation you are left is 14b square. Further expression cannot be simplified, so it is going to be yours answer. Coming up with the question number 11. Question number 11 we have a 16 a raised to the power 6 b raised to the power 7 divided by 12 a cube b 5 plus 20 a raised to the power 5 b raised to the power 4. What we observe there, in the numerator we have one term but in the denominator there are two terms. And one thing to remember, that individual terms can never be cancelled. Means that just like this, that if we are having like 6 divided by 2 plus 3, okay, can we cancel 3 by 2? No, we cannot cancel 3 with 6, right. So same is the thing, that if the terms are with addition and subtraction, then what is the method to cancel them? First of all we have to take common and then we are going to cancel. Okay, so I have to take common from the denominator. Let me write numerator as it is 16 a की power 6 b raised to the power 7 divided by, okay, अब 12 और 20 पे मैक्सिमम टेबल कौन सा है जो जाता है, 4 का. द कॉमन टेबल वी हैव इज 4. इसके अलावा यहाँ पर a क्यूब है, यहाँ a की पावर 5 है. द सेम कॉमन टर्म इज a क्यूब, b raised to the power 5 and b raised to the power 4. So we have b raised to the power 4. Inside I am left as 4 3 ज़ा 12. a cube has been taken common, b raised to the power 5, 4 was taken common, 1b is left, plus now read the table of 4 up till 20. It's 4 5 ज़ा 20. a raised to the power 5, we have a cube there, so a square is left there. b raised to the power 4 has
has been taken common. Okay, now what I can do, I can cancel 4 ones are 4, 4 fours are 16. So I have done 4. Now it's a raised to the power 6 and it's a cube. A raised to the power 6 can be written as a cube into a cube. Okay, b raised to the power 7, in the denominator we have b raised to the power 4. It can be written as b raised to the power 4 into b raised to the power 3. So total power will be 7 divided by a cube b raised to the power 4. Inside the bracket it's 3b plus 5a square. Okay, now cancel them up. A cube will be cancelled with a cube, b power 4 will be cancelled with b power 4. I am left as 4a cube b cube divided by its 3b plus 5a square. फर्दर एक्सप्रेशन कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड. यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप a क्यूब को और a स्क्वायर a काट दें या b काट लें. क्यों? क्योंकि अगेन यहाँ पर सेंटर में प्लस है. इंडिविजुअल टर्म्स कैन नेवर बी कैंसल्ड. इस बात को याद रखिएगा. एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे अगर आपके पास हो फॉर एग्जांपल x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई. ठीक है, अगर आप x को x के साथ और y को y के साथ काटेंगे तो आपको इसका 0 मार्क मिलेगा. राइट, बिकॉज इंडिविजुअल टर्म्स कैन नेवर बी कैंसल्ड. लेकिन अगर आप x माइनस वाई ओवर x माइनस वाई करेंगे, इन टर्म्स को अगर आप इस टोटल टर्म को इस टोटल टर्म के साथ काटेंगे, ठीक है, देन दिस कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी करेक्ट. बात यहाँ पे भी आपने वही की है, बात यहाँ पर भी आपने वही की है, बट द डिफरेंस इज देयर कि आप यहाँ पर देखें, जैसे अगर यहाँ पर 25 डिवाइडेड बाय 15 हो तो आप 5 को कैंसिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते. ये सिचुएशन आपके पास गलत हो जाएगी. राइट, इसी तरह से लेकिन अगर आपके पास ये सेम टर्म्स है 5 ओवर 5, सो यू कैन कैंसिल देम 5 विद 5. ओके, सो ये केस ये वाला था और ये केस ये वाला था. आई होप दैट द सिचुएशन इज क्लियर टू यू नाउ. इसी से फिर भी अगर आपको नहीं समझ आता, इफ यू पीपल हैव एनी कंफ्यूजन यू मे आस्क इन द कमेंट्स, then I'll make another video for it and just to clear the concept. Right.